Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ गौरव धावनलाल। Thank you, Subodh, and Ashutosh. Welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. Domestic markets to focus on RBI MPC meet. Auto sales data and global developments for Qs next week. Coal production jumped 7.2% to nearly 91 million tons in November. And Sri Lanka records highest deflation in more than 6 decades. अगले हफ्ते शेयर बाजार का फोकस रहेगा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक, वाहनों की बिक्री के आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं पर। नवंबर में कोयले का उत्पादन 7.2% बढ़कर लगभग 9 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंचा और श्रीलंका में दर्ज हुई पिछले 6 दशकों की सबसे अधिक अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। We begin with our first headline story. Domestic markets will focus on the RBI policy, monthly auto sales data, US jobs data, geopolitical developments and FII activity for Qs next week. Rising for the second straight week, the benchmark indices gained nearly 1% last week on easing geopolitical tensions and fall in oil prices. The Sensex rose nearly 1% last week to end at 79,803 on Friday, while the Nifty also jumped nearly 1% to 24,131. Next week, all eyes will be on the last Monetary Policy Committee or MPC meeting of the current calendar year, scheduled on December 4th to 6th. The meeting is happening against the backdrop of weaker than expected GDP numbers and inflation numbers above the RBI's target of 4%. On the global front, apart from monthly factory orders and vehicle sales data, investors will focus on US jobs data. In addition, speeches by several Federal Reserve officials during the next week, including Chair Jerome Powell, will also be closely monitored to get the hint about interest rate decisions in the upcoming policy meet on December 19th. The focus will also be on oil prices, as the sharp fall in prices last week on hopes of reduced tensions in the Middle East played a supportive role for the Indian equity markets. Brent crude futures dropped nearly 4 last week to $72.3 a barrel. Time now for us to welcome our first caller of the day, Yogesh from Delhi. Yogesh, welcome. Please ask your question. थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो मार्केट क्रैश हुआ था, तो हम एक बुक पढ़ रहे थे, पराग पारिक जी की बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। तो उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है और जब मार्केट क्रैश हुआ था तो हमने कहीं पर सुना था कि डीप वैल्यू बाइंग आने की वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या म्यूचुअल फंड में भी करी जा सकती है स्टॉक के अलावा? दूसरा मेरा जो सवाल है खासतौर पे वो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के म्यूचुअल फंड होते हैं, वैल्यू डिस्कवरी ICICI का है, उसको लेकर के नहीं है, जिनमें हमारी SIP भी चल रही है
अगर हम उनमें सिर्फ बॉटम आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही कंसीडर किया जाएगा? जी, जो आपका पहला सवाल है कि क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करी जा सकती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी, देखिए बिल्कुल करी जा सकती है, बट माय सजेशन टू यू वुड बी यू रादर आप अपना डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करिए, जो भी आप एसआईपी या रेगुलर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू रादर चूज फंड्स एंड गो विद द फंड मैनेजर्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी ट्रू टू लेवल तरीके से परस्यू करते हैं। आपने पराग पारिक का नाम लिया, एक बेहतरीन फंड, एक बेहतरीन फंड हाउस, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के काफ़ी जाने माने प्रोपोनेंट्स हैं। इसी तरह आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी आपने कहा, शंकर नरेन जिनके फंड मैनेजर हैं, तो पराग पारिक, राजीव ठक्कर जिनके फंड मैनेजर हैं, आईसीआईसीआई प्रू, शंकर नरेन, आप इनके फंड्स में इन्वेस्ट करिए। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेहतरीन प्रोपोनेंट्स हैं। मार्केट्स में वैल्यूएशन को देख करके कहाँ पे उन्हें वैल्यू नज़र आती है, कहाँ पे उन्हें अंडर वैल्यू नज़र आती है, उसको देख करके इन्वेस्ट करते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनके के बारे में काफ़ी हाईली बोलता है, तो आप उनके साथ इन्वेस्ट करिए। जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से संजय। संजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Sir, my question is, for doing asset allocation and rebalancing between debt and equity, which category of debt fund is most suitable? Sanjay ji, I would recommend 2-3 fund categories. Categories like short duration funds, corporate bond funds, maybe to an extent banking and PSU funds. These are the categories which I find to be suitable to be at the heart of your fixed income portfolio in debt, and therefore these are also suitable to do any asset allocation or rebalancing from time to time. These are the categories where these funds generally maintain high credit quality portfolio. They do not take undue credit risks. At the same time, generally these funds also avoid the duration risk. What that means is that generally stay away from investing in very long-term bonds, which can react sharply to any interest rate movements. So my personal favorite is short duration funds because I get a very controlled measure of risk. I get portfolios which are relatively predictable on risk, and they are known to deliver slightly better returns than fixed deposits. And I believe these are the outcomes which really a fixed income investor needs. So all of them in a convenient single fund package you get in short duration funds. That's why they are my number one preference. जी, अगर आशुतोष, अगर हम देखें, बहुत सारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वित्तीय समझदारी क्या है, कैसे होनी चाहिए, हमें अपने जीवन में अगर इसे मैनेज करना है ठीक से सब कुछ, तो अपना जैसे जीवन शुरू कर रहा है, करियर शुरू कर रहा है कोई, तो उन्हें किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, इस पर भी अगर थोड़ा वक्त मिले तो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली से, प्रेम हमारे साथ। प्रेम, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, म्यूचुअल फंड में हमें अगर जाना है तो इसमें हमें एक साथ पैसा लगाना होता है क्या, या महीने के महीने ही लगाना चाहिए? जैसे कि आप हम अपना बचत करते हैं 1000, 2000, 5000 रुपये महीने की, तो हम डायरेक्ट फिर कैसे लगाएं, और किस तरह साधन है, किस तरह कहाँ पे बैंक में हो जाते हैं, या कहीं इसके स्पेशल ब्रांच मैनेजर होते हैं, या वो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, और या फिर हमारे पास कैश है पैसा हमारे रिटायरमेंट के बाद मिला है, कुछ एफडी हैं, क्या हम डायरेक्ट गोल्ड ही खरीद लें? देखिए, मैं आपको म्यूचुअल फंड्स लेने की सलाह बिल्कुल दूंगा। म्यूचुअल फंड्स एक आम निवेशक के लिए मार्केट्स में एक्सपोजर लेने के लिए, जिनको मार्केट्स में अदरवाइज इन्वेस्ट करने की बहुत जानकारी नहीं है या मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन। तो आप म्यूचुअल फंड्स के लिए ज़रूर चाहिए। मैं बिल्कुल आपको सलाह दूंगा कि आप मासिक तौर पर अपना पैसे को निवेश करें। अगर आपके पास एक इकट्ठा रकम है भी, तो भी उसको एक साथ ना लगाएं। आपने बताया कि आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ एक मुश्त आपके पास रकम इकट्ठा हुई है, ये आपके लिए मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि काफ़ी मायने रखते हैं। पैसा आपके लिए काफ़ी अहम आपका ये एक पूंजी है जो कि आपको रिटायरमेंट पे मिली है। तो इसको बिल्कुल कम से कम 1-1.5 साल पर स्प्रेड करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, एक साथ बिल्कुल मत करिए। और आपको अगर जानकारी का भी अभाव है, कुछ आशंकाएं हैं मन में, तो स्मार्ट स्मॉल आप 1000-2000 रुपये के SIP से शुरू करिए, साल 6 महीने अपना SIP चलाइए,
आपको थोड़ी फेमिलियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप एक बड़ी रकम भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जल्दी में ऐसा सोचकर ना इन्वेस्ट करें कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, अभी मार्केट चल रही है तो मैं सारा पैसा अभी मार्केट में डाल देता हूं, जिससे कि, और इसके लिए बाद में अगर मार्केट चलती भी है तो आप उसको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ना देखें कि आप ये ना सोचें कि काश 6 महीने पहले मैंने पैसा डाल दिया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे हो गए होते। इस तरह की सोच अपने मन में मत डालिए। ये मतलब आपको ग्रीड की तरफ नच करेगा और उससे आपको आप अनवांटेड जोखिम उठाएंगे जो कि नुकसानदायक हो सकता है। रही बात निवेश कैसे करें, देखिए अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करने में, ऑनलाइन अपनी चीज़ों को मैनेज करने में कंफर्टेबल रहते हैं तो आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि बढ़िया काम करती हैं। आप उन ऐप्स के थ्रू अपना KYC करके पहला निवेश भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप उससे कम कंफर्टेबल हैं तो आप अपने बैंक में भी जाकर, सारी बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सुविधा देते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ बैंक ब्रांचेस आप जाएंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के नाम पर यूलिप्स बेच देंगे या और कोई प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जिन पे उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है, उस टाइप का प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जाएगी। बचने के लिए आपको ये करना है, आप जाके सिर्फ एक कोई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए। UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड है, HDFC का है, कोई भी एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेकर आप उसमें आप अपना एक शुरुआती निवेश शुरू करिए। आप साल 6 महीने बाद उसके बाद शायद तैयार होंगे बड़ा निवेश करने के लिए। From Jaipur, we now welcome Jitendra. Jitendra, हाँ, welcome. हाँ, थैंक यू मैडम। अच्छा सर, लिक्विड फंड क्या होता है, क्या और कितने समय के लिए इसमें जमा करना चाहिए, करने वाले के लिए चाहिए, और एक दो लिक्विड फंड का नाम बता दीजिए। जी, देखिए लिक्विड फंड आप एक तरह से मानिए कि अगर आपके पास कुछ पैसा, वो ऐसा पैसा जो आप बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगले 6 महीने बाद आपको मानिए घर की डाउन पेमेंट करनी है, कहीं आपने घर खरीदा उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो इस पैसे से आप जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकते। इस पैसे में थोड़ी सी भी गिरावट आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बन जाएगी। उस पैसे को निवेश करने के लिए ऐसी जगह जो बैंक अकाउंट से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे दे, उसके लिए लिक्विड फंड बने हैं। ये बहुत ही सुरक्षित, इनमें रिस्क नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है। लॉस का चांस, देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड गारंटेड रिटर्न तो नहीं देता है, लेकिन लिक्विड फंड्स में लॉस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ना के बराबर होता है। रिटर्न आप मानिए आपको 5, 5.5, 6% का रिटर्न आप इनसे एक्सपेक्ट करिए, जो कि बैंक अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और लिक्विडिटी T+1 पे आपका पैसा अगर आज आप निवेश करके आप अगर आज उस पैसे को रिडीम करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, कल तक बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। तो लिक्विड फंड्स को आप मानिए कि लो रिस्क लो रिटर्न टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे पैसे के लिए जिसको आप बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। रिटर्न उनसे कमाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, बस थोड़ा सा भी आपको बैंक अकाउंट में पड़े पड़े जो पैसे पे हार्डली आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उससे आप थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड आपके लिए बने हैं। कुछ फंड्स का मैं नाम लूँ तो HDFC का लिक्विड फंड आप देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड देख सकते हैं, एक्सिस का लिक्विड फंड देख सकते हैं। ये कुछ अच्छे लिक्विड फंड में जनरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अलग अलग फंड हाउस में, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाम पूछेंगे तो ये 2-3 में से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। दिल्ली से पंकज हमारे साथ हैं कॉल पर। पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अभी मैं फोन पे के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें एक ऑप्शन आता है गोल्ड फंड और गोल्ड सेविंग करके, उसमें मैं SIP करके रखा हूँ, तो उसमें अभी माइनस में ग्रोथ चाह रही है, तो आपका क्या सजेशन होगा कि गोल्ड फंड में कंटिन्यू करना चाहिए अभी या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए? देखिए गोल्ड हम वी डोंट थिंक वेरी हाईली, हम गोल्ड के बारे में एक लंबे समय के निवेश में हम बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं रखते हैं, क्योंकि गोल्ड देखिए गोल्ड एक प्रोडक्टिव एसेट क्लास नहीं है। गोल्ड कल क्यों बढ़ेगा या कल उसको आज से बेहतर रिटर्न क्यों देना चाहिए, इसका ये सिर्फ डिमांड सप्लाई पे चलता है। जैसे कि आप कंपनी में किसी में निवेश करते हैं, आप किसी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसमें कैश फ्लो होता है, बॉन्ड से ब्याज आता है जिससे जो आपको मिलता है। कंपनी में आप निवेश करते हैं, अगले साल उससे अगले साल कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाती है, उसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। गोल्ड में ये सब फैक्टर्स प्ले नहीं करते। गोल्ड के प्राइसेस में उतार चढ़ाव सिर्फ उसकी डिमांड सप्लाई की वजह से आता है, तो उसका कोई गोल्ड के प्राइस का ज़्यादा होने का कोई बहुत सॉलिड कोई फंडामेंटल प्रीमाइस नहीं है। इसलिए हम गोल्ड को बहुत अच्छा निवेश लंबे समय के लिए नहीं मानते हैं।
और आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी अगर गोल्ड के देखें तो मेरे ख्याल 9.5-10% है, तो ऐसा कोई बहुत बेहतरीन रिटर्न गोल्ड देने में सक्षम नहीं हो पाया है। हाँ, गोल्ड की एक खूबी ज़रूर है कि जब इक्विटी मार्केट्स बुरा परफॉर्म करती हैं तब गोल्ड को देखा गया है आमतौर पर कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि गोल्ड एक सुरक्षित एसेट क्लास मानी जाती है। तो जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, सुरक्षा की तरफ भागते हैं, और उस वक्त गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। तो गोल्ड का पोर्टफोलियो में थोड़ा सा होना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और इक्विटी जो कि रिस्की एसेट क्लास है उसको हेज करने के लिए आप थोड़े से कुछ मात्रा में गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखें, इससे ज़्यादा के लिए गोल्ड नहीं बनाए। रिटर्न उसके नेगेटिव बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइस जैसे उतार चढ़ाव करेंगे तो वैसे ही उसका गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी ऊपर नीचे गोल्ड प्राइजेस के साथ लिंक्ड होता है तो जाएगा। तो उसके नेगेटिव रिटर्न से कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन आप ये देखिएगा आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड कितनी मात्रा में है। मेरे हिसाब से गोल्ड आपके किसी भी पोर्टफोलियो में 10-15-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। From Delhi, our next caller, Mr. J.S. Saluja. Please ask your question. Good evening to the entire team of Market Mantra. Good evening. My question is that I want a very detailed and succinct, analysis on this trust mutual fund FlexiCap. And another question is that whether SIP of 6 months is better or 1 year. A detailed analysis, please. Thank you. And question is that whether SIP see, trust mutual fund, I'll say that you should give it some time. Trust, the mutual fund that they've launched is a very new product. In fact, when they launched, they were an AMC focused on debt funds. So equity is an asset class where they've just stepped in. Let them build up their credentials. I don't think as an investor you should be in a hurry to jump into an equity mutual fund of trust. There are other, fair amount of options available in the market. So I don't think an investor should be compelled to go for a trust FlexiCap right now. Very new to this asset class itself. Give them some time, let them prove themselves before you deploy your hard-earned money with them. Your second question, 6 months SIP or 1 year? I think SIPs are meant for long term. It depends. I mean, if this is an accumulation which you are planning to invest in the market, and if this accumulation is nothing more than, let's say, 1 year's bonus for you, then 6 months is a good enough time. But if that money is more meaningful, it's an important sum of money for you, then I think by the principles of prudence, you should be spreading that money over a longer time frame, 1 year. If it's a very important accumulation, once in a lifetime kind of money, then maybe even 2 years of SIP might be desirable. जी आशुतोष, हम जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या वित्तीय समझदारी लोगों को अपनानी चाहिए, जैसे टर्म इंश्योरेंस खरीदने की बात है या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की बात है, और कब खरीदना चाहिए और खरीद कर उसे कैसे संभालना चाहिए, ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। आप बता सकें? सुबोध जी, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आइडियली ये काफ़ी विस्तार में एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये इन्वेस्टमेंट से भी पहले आते हैं, निवेश से पहले इंश्योरेंस आती है। तो बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस तो आज की डेट में सभी के पास अपनी फैमिली की कवरेज के लिए होनी चाहिए। जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ, तो एक अनफॉर्चुनेट सिवियर इलनेस का एपिसोड एक फैमिली में पूरी फैमिली के फाइनेंशियल्स को हिला देने में सक्षम होता है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही उपाय है, एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना। लाइफ इंश्योरेंस हर उस इंसान के पास होनी चाहिए जो फैमिली का ब्रेड विनर है, जो कमाई करता है और उससे घर का खर्च चलता है, फैमिली चलती है, बच्चों की पढ़ाई होती है। तो जो सोल ब्रेड विनर है फैमिली में, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही क्रिटिकल, और टर्म इंश्योरेंस जैसे आपने कहा, हर किसी को टर्म इंश्योरेंस ही लेनी चाहिए और किसी भी तरह की इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपने वित्तीय समझदारी की बात करी। मेरा सुझाव सबसे पहले ये होगा कि अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो ये ज़रूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, आपने बहुत अच्छा पहला कदम उठाया है, लेकिन क्या आपके परिवारजनों को इस बात की जानकारी है? अगर आपने संभाल के टर्म इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली याद रखिए कि अगर उसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं, आपके परिवार वालों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो उसकी जानकारी अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को दीजिए। उन्हें बताइए कि अगर भगवान ना करे कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि इसकी ज़रूरत पड़े तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे वो पैसा वो हासिल कर पाएंगे। उसके बिना आपका टर्म इंश्योरेंस लेना अधूरा है। You spoke, Ashutosh, of term insurance, and a lot of insurance providers are also selling insurance as a form of investment.
And I think that's where, because they say, it's better than the, maybe a mutual fund, because it's also giving you life coverage. And you also said, Khali term insurance lijiye, baki mat. Is pe just a little more elaboration. It's not investment, right? Yes. So the idea is that the proposition of insurance come investment products is very tempting. When a sales pitch is made, they look like, a wonderful and a tailor-made product. But that is far from reality, because of course they combine insurance and investment, but they combine it in a rather suboptimal way, because you get a very paltry sum of insurance. In fact, insurance component is just embedded just to make it look like an insurance product. You hardly get any insurance, and therefore, if the need arises, they are often found to be grossly inadequate. On the investment side, they tend to be a very expensive proposition because of all the front-loaded commissions that these products have. They generally don't work out as a good product. So it's always advisable to keep insurance and investment separate. Choose low-cost mutual funds or other pure investment products, and go for a pure insurance product like a term insurance to adequately cover your insurance needs. Right. जी, बेंगलुरु से सुब्रतो हमारे साथ हैं. सुब्रतो, स्वागत है आपका. सवाल पूछें. गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग. मेरा 2 सवाल है. पहला सवाल, ये जीएम फ्लेक्सी के फंड में मैंने 5 महीना पहले डाला हूँ, तो दिसंबर के एंड में ये 6 महीना हो जाएगा. उसमें लिखा है कि इफ आई विथड्रॉ बिफोर 180 डेज देन आई हैव टू पे दैट एग्जिट लोड, एंड इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट इज गोइंग डाउन. सो शुड आई विथड्रॉ और शुड आई स्टे इन्वेस्टेड? एंड इफ आई विथड्रॉ आफ्टर 180 days, should I have to pay any tax? And my second question is about short-term capital gain and that long-term capital gain. That tax will be applicable for the profit or total withdrawal amount. If it is more than 1.5 lakh, that time I have to pay tax. So it including my investment amount, or it's only that profit amount? Sure. So your first question regarding JM FlexiCap, well, in the last 6 months, JM FlexiCap generally has done well in the last 1 year or so. So, I don't think there is a reason for you to be too disappointed with your investment. Although the ideal is that if you are investing a reasonable amount, some 10-15,000 SIP or more, you should, ideally spread your money across more than one fund rather than just JM FlexiCap. Investing for 6 months and, the negative returns or the fall is a function of the markets. All funds have witnessed a fall. That's a function of the market. So I don't think you should take that decision, in haste. Yes, you would saddle yourself with exit loads if you exit before 180 days. So that's an unwanted step. Avoid that. In fact, if you sell before 1 year, then you would be liable to pay a higher rate of tax in the form of short-term capital gains tax of 20%. After 1 year, your tax rate reduces to 12.5%. So I think you should not think about exiting right now, unless of course you need that money. If you don't need that money, stay invested. And to your second question, the amount of tax is levied on the gains component. So if you invested 10,000 and you are redeeming 12,000 rupees, then the tax that you pay has to be on 2,000 rupees. Whatever applicable tax rate is there should be applied on 2,000 rupees. So in short, it is on the gains component that you have to pay the tax. As a part of covering the country, we move from Bengaluru to Kolkata. Gautam, welcome. Please ask your question. Gautam, please ask your question. Sir, I want to know the UTI Master Share. UTI Master Share, I'll have to check, because you are taking a name of a fund which is a very, very old fund. I'll have to check, but I believe that UTI Master Share has been renamed as UTI FlexiCap at the moment, but that's something we can confirm to you if you call up again next week. No, it's UTI Large Cap. So I've been able to check as we speak. So UTI Master Share is now called UTI Large Cap. It's an average performing fund. Since you took the name of UTI Master Share, seems to suggest that this is a very long-term investment. You've been holding this fund perhaps for 15-20 years or even more, because it's been a while that this fund was renamed as UTI Large Cap. So that be the case, I think this has been a fairly rewarding fund. If you don't need the money, you can stay invested.
आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। नवंबर में देश में कोयला उत्पादन 9,06,20,000 टन तक पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में यह 8,45,20,000 टन था, यानी कोयला उत्पादन में 7.2% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कोयले का कुल उत्पादन 62,80,30,000 टन तक पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2023-24 की समान अवधि में यह 59,13,20,000 टन था, यानी इसमें 6.21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोयला मंत्रालय ने कहा कि वह कोयले का उत्पादन बढ़ाकर उसके परिवहन को सक्षम बनाकर और पूरे देश में कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। So we have around 5 minutes, and before we welcome our next caller, quick look at our last headline story. In Sri Lanka, inflation as measured by the Colombo Consumer Price Index on a year-on-year basis decreased to minus 2.1% in November 2024, the highest deflation rate recorded by the economically fragile island nation since 1961, official data showed on Saturday. Sri Lanka's Department of Census and Statistics reported that the decrease was compared to the minus 0.8% recorded in October 2024. Earlier this week, the Central Bank of Sri Lanka had said that the inflation rate on the island is expected to remain in the negative territory until mid-2025 due to the stance maintained in the monetary policy. It also said that in the medium term, inflation is expected to remain in the target range of 3 to 5%. An unprecedented financial crash in 2022 brought months of consumer goods shortages, with inflation peaking at nearly 70% that year. Our next caller from Kolkata, Abhishek. Abhishek, please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट सर। गुड इवनिंग सर से मेरा क्वेरी है सर, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ, उसको और कोई इनकम नहीं है हाउस वाइफ का, और वो शेयर मार्केट एज ए पार्ट टाइम प्रोफेशनल जॉब इसे ले लिया, तो ईयरली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के 5 लाख रुपीस उन्हें गेन किया और प्रॉफिट किया, तो उसको टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा सर से? देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, अगर 5 लाख ही टोटल गेन है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिलाकर, तो मेरी जानकारी के मुताबिक टैक्स नहीं देना होगा अगर और कोई सोर्स नहीं है इनकम का, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम से नीचे रह गया है। लेकिन अगर और भी इनकम है तो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट वही अप्लाई होते हैं जो ये इक्विटी एसेट क्लास पे अदरवाइज होगा कि 12 महीने से अगर कम की होल्डिंग है तो 20% के ब्याज के टैक्स दर से टैक्स लगेगा गेन्स के ऊपर, और 1 साल से ऊपर की होल्डिंग के बाद 12.5%। आखिरी कॉलर हैं हमारे साथ जोशी दिल्ली से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, जोशी नाम है मेरा जी। हेलो जी, सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में, इसका क्या पीरियड होता है? जैसे कहा जाता है कि 10 साल से ऊपर, तो 10 साल से ऊपर से कोई लिमिट होती है या उसका क्या है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि 2007 और 2010, 11, 12 से हैं, तो उनका नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ आपको, जिसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मुझे इनको क्या कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए। आप नाम ले लीजिए फटाफट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एक का नाम ले लीजिए। टैक्स सेवर, HDFC टैक्स सेवर, HDFC टॉप 100, ICICI प्रो ब्लू चिप, ICICI प्रो टैक्स सेवर। जी, देखिए, आपके फंड सिलेक्शन बुरे नहीं हैं, आप इन फंड्स में बने रह सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए लॉन्ग टर्म आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का होराइजन है तो आपके लिए इक्विटी निवेश ठीक है, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। निकालना कब चाहिए पैसा, देखिए इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। आपको जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, उससे आप करीब 1-1.5 साल पहले धीरे धीरे कर मासिक तरीके से पैसा निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे आप SIP करते हैं, रिवर्स SIP करिए, यही तरीका आप अपना सकते हैं। आशुतोष जी, समय इतना ही है। मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely, Ashutosh. Thank you so much. And now, before we close, a quick look at the headlines. Domestic markets to focus on RBI, MPC meet, auto sales data and global developments for Qs next week. Coal production jumped 7.2% to nearly 91 million tons in November, and Sri Lanka records highest deflation
in more than 6 decades. And that's it in today's program. Namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.